Next question number 16. A small angle prism. याद रखना small angle मतलब thin prism. So you have a thin prism with refractive index 1.62 gives a deviation मतलब delta value 4.8 degree. Angle of prism is. So if you remember, thin prism के लिए delta is a into mu minus 1. और आपको पूछा क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट? तो यू नो ए विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन म्यू माइनस 1, और डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज 4.8, म्यू वैल्यू इज 1.62 माइनस 1, सो दैट इज 4.8 अपॉन 0.62. इजी है, यू नो दिस इज 48/6 रफली. व्हाट 48/6 है ना? पक्का? Is this 48/6? 4.8 is 48 into 10 power minus 1. 0.62 is 6.2 into 10 power minus 1. Cancel. 1 and 8 जा. Okay, तो 7 point something. तो option number D. For a glass prism, refractive index value mu is √3. The angle of minimum deviation is equal to angle of prism. आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3 है, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब डेल्टा की वैल्यू और ए की वैल्यू इक्वल दी है. द एंगल ऑफ प्रिज्म इज. तो here nowhere they have told you that this is a thin prism. बोला है कहीं पे? नहीं. So when it is not said that the prism is thin prism, you have to use prism formula, which is mu equal to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. और आपको फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ प्रिज्म. मतलब आपको बेसिकली यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए इटसेल्फ. एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म एंड फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो इक्वेशन है प्रिज्म फॉर्मूला, इसमें डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करोगे. डेल्टा एम इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. तो डेल्टा एम इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस ए बाय 2 upon sine of a by 2. Good. So now what you can do is, ये ऊपर न्यूमरेटर में what you have is 2a by 2. You have 2a by 2. So therefore what you will get in this case is, you will have, this is equal to mu equal to sine of 2a by 2, that is a. तो साइन a और नीचे साइन ऑफ a by 2, करेक्ट? अब क्या नहीं करना है वो समझ लो, ये और ये कैंसिल नहीं करना है. वेरी गुड. तो यू नो ट्रिग्नोमेट्री. तो बट यू शुड ऑल्सो नो साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. साइन ऑफ 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. तो साइन ऑफ a is 2 sin a by 2 cos of a by 2 upon sine of a by 2. Cancel and cancel. So therefore you have mu equal to 2 cos of a by 2. So now what you can do is, आपको ये √3 दिया ही है, तो √3 और ये 2 को शिफ्ट कर लेंगे बाद में, 2 cos a by 2. अब just shift 2 here, तो √3 by 2 equal to cos of a by 2. cos की वैल्यू √3 by 2 कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्रीज पे होता है. तो दिस इज 30 डिग्रीज. तो cos of 30 is cos of a by 2. Therefore 30 degree equal to a by 2. Therefore a equal to 60 degrees. तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्रीज. ऑप्शन नंबर डी. Next question. In the next question, what you have is, आपको बोला है यहाँ पे a ray of light
passes through an equilateral. This word is important. A ray of light passes through an equilateral prism of refractive index 1.5, such that angle of incidence is equal to angle of emergence. Such that angle of incidence I equal to angle of emergence. और आगे बोला है and the latter मतलब जो बाद में बोला, बाद में कौन बोला? E, है ना? पहले क्या मेंशन किया इन्होंने? Angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of angle of prism, right? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मर क्या लैटर क्या, क्योंकि I equal to E है. The angle of deviation is, और ऊपर से आपको बोला है इक्विलैटरल प्रिज्म. इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए A की वैल्यू होती है 60, क्योंकि तीनों एंगल बनते हैं 60, 60 एंड 60. So for equilateral prism you must know, and what you should know is A value is 60. So for equilateral prism you have A equal to 60 degrees. और ऊपर से बोला है I equal to E equal to 3/4 of A. मतलब this is equal to 3/4 of A. A is 60. 1s and 15s are 15 3s are 45. So angle of incidence और emergence 45 है. Angle of deviation आपको पूछा है, and that's why I told you prism formula derive करते वक्त हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप पता लगेगा आपको कि you should remember A plus delta equal to I plus E, right? And in this case A is 60. Delta फाइंड करना है. एंगल ऑफ डेविएशन इज टू बी फाउंड आउट. I और E इक्वल है 45 और 45 है, तो 45 इट इज 90. 90 में से 60 गया तो 30. So you will have delta equal to 90 minus 60, that is 30 degrees. Option number B. Next question. A compound microscope consists of, so you have a compound microscope which consists of an objective lens of focal length 1 centimeter and eyepiece of focal length 2 centimeter and a tube length of 20 centimeter. The magnification will be. So first of all, you should remember, आपको ये पता होना चाहिए, in case of compound microscope, objective is smaller compared to eyepiece. ऐसा ही होता है. Yes, yes. So this is what you have, and then you must also remember tube length मतलब क्या? Tube length मतलब the distance between objective lens and eyepiece. तो tube length मतलब objective और eyepiece lens का distance, दोनों का distance. And so this distance from this point to this point is L, वो 20 सेंटीमीटर दिया है. और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, ओके. सो मैग्निफिकेशन इन दैट केस इफ यू रिमेंबर वाज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. हमने थ्योरी में देखा था कि मैग्नीफाइंग पावर किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. इट हैज टू लेंस, इसके लिए यहाँ पे दोनों आएंगे, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आईपीस का मैग्निफिकेशन. नाउ there are many formulas. एक फॉर्मूला नहीं है इसका, बहुत सारे फॉर्मूला है. It will also depend on, sometimes आपको ऐसा बता सकता है कि इमेज कहाँ बना. If the image is formed at DDV तो फॉर्मूला अलग. If the image is formed at infinity तो फॉर्मूला अलग. तो अगर आपको D और U दिया है तो अलग, आपको D और V की वैल्यू दी है तो अलग. तो अलग अलग केस में इसके अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं. बट व्हाट वी हैव इन दिस केस इज लेंथ ऑफ ट्यूब. तो हमको लेंथ ऑफ ट्यूब हमको दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और डी तो पता ही होता है. डी इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फॉर अ नॉर्मल अनएडेड ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर. तो यू शुड नो इन टर्म्स ऑफ एल, एफ, ओ, एफ ई एंड डी. इन दिस केस द फॉर्मूला इज एल अपॉन एफ ओ, डी अपॉन एफ ई. तो ये पता होना चाहिए. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो ये हमने थ्योरी में डिराइव नहीं किया था, तो आई एम मेंशनिंग इट नाउ. So this is 20 centimeter and focal length of objective is 1. Distance of distinct vision is 25 and that of eyepiece is 2. 2 हो गया. This is how much? 500. 500 है ना? 500 by 2 is 250. तो magnification is 250. मतलब image size is 250 times of object size.
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a compound microscope the focal length of two lenses are 1.5 6.25 centimeter और focal length of two lens मतलब of course focal length of objective, microscope में objective छोटा होता है तो 1.5 centimeter and that of eyepiece is 6.25 centimeter. If an object is placed 2 centimeter from the objective and final image is formed at 25 centimeter from eye lens, the distance between two lens is, तो length of the tube पूछा है आपको, तो first of all you should remember, आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे image कहाँ बनेगा finally। तो you have, what you have is this, आपके पास ये एक eyepiece है, sorry objective है, and then you have eyepiece, something like this, and then रेफरिंग टू सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपको याद होगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक ही लेंस लेते थे और उसको उस केस में हम ऑब्जेक्ट को इंटेंशनली रखते थे बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ सो दैट द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बट इस केस में हम जानबूझ के ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड एफ, मतलब बिटवीन एफ एंड 2f। व्हाई डू वी वांट टू डू दिस? हम ऐसा इसके लिए करते हैं सो दैट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन द अदर साइड, मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, वो होगा यहाँ समवेयर हियर। देन रिमेंबर दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस, और इंटेंशनली ये जो ए बी जो ऑब्जेक्ट था, इंटेंशनली इसका जो इमेज बना ए डैश बी डैश, you keep it within focal length of eyepiece। तो यहां से यहां तक ये है focal length of eyepiece। हम intentionally इस इमेज को, कौन सी इमेज को किसने बनाया, ये इमेज किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने बनाया। तो एक काम करता हूं मैं पहले डिस्टेंसेस को यहाँ पे बता देता हूँ। तो दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है इमेज का। किसका इमेज डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाया उसका डिस्टेंस। उसके बाद यही इमेज इट एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए? आईपीस के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस एंड दिस डिस्टेंस इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट ये आईपीस के फोकल लेंथ से कम होता है। मतलब दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इस केस में ये होगा, यू विल गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो इमेज और भी बड़ा बनेगा। दिस इज व्हाट यू गेट। और ये आपके पास दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? इट विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज। किसने बनाया ये इमेज? आईपीस ने बनाया ये इमेज, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करोगे ए बी की, कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि क्या है? टू द लेफ्ट। आगे बोला है आपको कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप माइक्रोस्कोप की बात करते हो तो फाइनल इमेज कहाँ बनता है? ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में। फाइनल इमेज मतलब किसके लिए फाइनल इमेज? आईपीस के लिए फाइनल इमेज। तो आईपीस के रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो फाइनल इमेज कहाँ है? टू द लेफ्ट। तो 25 सेंटीमीटर भी क्या लेंगे? माइनस लेंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव से मेजर कर लिया, हो गया प्लस, गड़बड़ हो जाएगी। तो फाइनल इमेज इज मेड बाय आईपीस लेंस, तो ये माइनस लेना पड़ेगा। गुड। और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब। मतलब बेसिकली यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो अब ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यू सी समथिंग, इट इज वीओ प्लस यूई। गुड, है ना। ये यहां से दिस डिस्टेंस इज वीओ और इतना है यूई। तो अब whatever data you have वो यूज करके आपको फाइंड करना पड़ेगा। what data you have is
UO which is 2 सेंटीमीटर। माइनस में बाद में करूंगा, अभी नहीं, अभी तू लिख दो यहाँ पे। और व्हाट डेटा यू हैव इज VE, VE कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नो। तो अब व्हाट एल्स यू नो इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माइनस क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेंस है, इट इज नॉट मिरर। मिरर होता तो बीच में आता प्लस। गुड, so you have to use this equation twice. पहला केस for objective, what you will do is 1/FO equal to 1/VO minus 1/UO, and what data we have is हमारे पास ये और ये इंफॉर्मेशन है। और साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन यूज करने से पहले मैंने बताया था कि जो फाइंड करना है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखो 1/VO, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या लगेगा VO, और क्या चाहिए UE, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब इज VO प्लस UE। तो VO फाइंड करते वक्त VO के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं, तो उसको पहले लेफ्ट में रख दो। इसको लेके आओ अब यहाँ पे 1/FO प्लस, अब बोलो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, एंड यू नो दैट कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे था तो वो आएगा नेगेटिव। गुड, देन पुट इट ओवर हियर, तो 1/VO will be equal to 1 plus FO, and this will be minus आ गया। तो 1/FO, what is FO? नहीं, वैल्यू दिया ना 1.5, ओके 1.5 माइनस व्हाट इज दिस 2 minus 1.5 is 0.5, this is 3, और ये आपका है 1/2 और नीचे 3 6, तो 1/VO equal to 1/6, तो VO equal to 6 सेंटीमीटर। VO तो हो गया, अब UE फाइंड करना है। वेल, हमको पता तो लग गया कि A तो ऑप्शन होगा नहीं, कोई नहीं सकता, राइट? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे UE ऐड करना बाकी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला वापस से एक बार यूज होगा। तो यू विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला वंस अगेन फॉर आईपीस, and 1/FE equal to 1/VE minus 1/UE. Shift it here, 1/UE equal to 1/VE minus 1/FE. Good. अभी यूजिंग साइन कन्वेंशन, यहाँ यू फाइंड करना है तो उसका कन्वेंशन यूज नहीं होगा, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। देन 1/UE इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस, सॉरी ये आ जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि ये भी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव, और V माइनस क्यों? क्योंकि आईपीस के रेफरेंस से फाइनल इमेज कहां बना, टू द लेफ्ट। तो टेक आउट नेगेटिव साइन एंड सॉल्व दिस। तो यू विल हैव टू सॉल्व दिस। 1/UE इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दिया, 1/VE प्लस 1/FE, तो ये आ गया 1/UE इक्वल टू माइनस 1/VE कितना है 25, FE कितना है 6.25, इजी। 6.25 2 जा 12.5 इंटू 2 मतलब 4, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अगर, इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा 4/25, दिस इज 5/25, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 5/25 मतलब माइनस 1/5, तो UE इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। तो 6 - 5 मत कर देना, 1 बन जाएगा 1, वो तो होगा नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो UE का नेगेटिव साइन आया, इट इज जस्ट टेलिंग यू दैट UE इज टू द लेफ्ट। है क्या आईपीस के लेफ्ट में है? यस, तो जस्ट अ करेक्शन, फॉर्मूला में करेक्शन, ऑलवेज टेक mod values. So you will have therefore length of the tube which is mod of VO plus mod of UE. This is equal to 6 plus 5, 11 centimeter. तो ऑप्शन नंबर डी,
You have 11 centimeter as answer. Next question. A ray of light is incident at 60 degree. So angle of incidence is 60 degree on a prism of refracting angle 30 degree. मतलब angle of prism A is 30 degree. The emerging ray is at an angle 30 degree with the incident ray. Emerging ray is at an angle 30 degree with incident. Angle of deviation 30 degree. The value of refractive index of the prism is. तो म्यू की वैल्यू पूछी है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, और ये क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली सॉल्व ओरली इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एंगल्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रिज्म, बट एनीवेज मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा इसका. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंसर शुड बी √3. लेट अस चेक इफ इट इज √3 और नॉट. वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपको पहले तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. तो यू हैव व्हाट यू हैव इज अ प्रिज्म. प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है 30 डिग्रीज. उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप हमेशा मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो पहले मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. देन यू हैव अ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. लाइट इज गोइंग समथिंग लाइक दैट. ऐसा इंसिडेंस हुआ 60 डिग्री पे, मैं बता दूंगा एंगल. उसके बाद आपको बोला है एमर्जिंग रे इज एट एन एंगल ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट. तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेते हैं. तो ये ऐसा है, इमेजिन, राइट. तो दिस इज 60. और आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा. तो पहले जो गिवन डेटा है उसको देख लेते हैं. फाइन. तो बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट इज सपोज टू बेंड towards normal. Towards ki away? Towards. So it is supposed to bend towards normal. So it is supposed to go like this. Okay. तो towards normal ये जो एंगल बनेगा ये होगा R1. अब जो गिवन डेटा है पहले उसको हम लिख लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 60. एंगल ऑफ प्रिज्म कितना? 30. एंगल ऑफ डेविएशन कितना? 30. A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E. तो E कितना? A प्लस डेल्टा माइनस I. A is 30. A is 30. Delta is 30. I is 60. 0. Angle of emergence 0. मतलब जो ये ray of light था, it goes out perpendicular to the surface. मतलब ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड बीम है, रिफ्रैक्टेड जो बीम है ये नॉर्मली बाहर जा रहा है. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली बाहर जा रहा है. और आपको याद होगा ओरिजिनल डायग्राम. तो पहले मैं ओरिजिनल डायग्राम दिखा देता हूं, फिर आपको इसके आगे का स्टेप समझ में आएगा. ओरिजिनल डायग्राम जो था प्रिज्म का, इफ यू रिमेंबर, एंड आई होप यू रिमेंबर, याद रहना चाहिए ये. So this is what you have. Normally ray goes like this, then it bends again, right? And then you have to draw normal. आपको दो नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. मैं बाकी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ because I don't need that thing. तो ये जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, ये है E. तो स्नेल्स लॉ अगर आपको अप्लाई करना है, आप AB सरफेस पे या AC सरफेस पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, वापस है मीडियम 1. क्यों? क्योंकि एयर और बीच में प्रिज्म. तो अगर आप AB पे अप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 साइन ऑफ I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ R1. और अगर आप सेकेंड सरफेस पे अप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या 2, जो भी पहले लिखना हो, डजंट मैटर. यू कैन से 2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2, दैट इज साइन R2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम इज अगेन 1 साइन ऑफ E. एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो अगर इतना बेसिक्स अगर आपको याद है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो सिंपल, बट देन they are testing basics. Do you remember? If you remember, then okay. So you can solve this now.
अब अगर मैं AC फेस पे, मतलब यहाँ पे AC फेस पे, if I apply Snell's law, what I will get, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म which is mu2, ये है आउटसाइड mu1. बट वेट अ मिनट, लाइट कैसा जा रहा है बाहर? परपेंडिकुलर. और एंगल कहां से मेजर करते हो? परपेंडिकुलर से. तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि एंगल यू ऑलवेज मेजर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और रे खुद ही नॉर्मल के डायरेक्शन में गया. कैसे पता लगा हमको? एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है. एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा मतलब जो लाइट बाहर गया, एमर्ज हुआ, इट इज परपेंडिकुलर. और अगर E 0 है तो R2 को तो 0 आना ही है. यू सी, इफ E is 0, look at that equation. Okay, what you have is mu2 sin R2 equal to mu1 sin E. Do you have E equal to 0? Yes. If E is 0, sin 0 is 0. तो ये आ गया आपके पास 0. अब mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो पूछा क्यों होता? फिर 0 होता तो फिर पूछते क्यों? ओके, तो व्हाट इज 0 देन? sin R2 is 0. sin R2 0 मतलब R2 is 0. R2 0 तो पहले बता दिया था कि नॉर्मल इमर्जेंस तब होता है जब इंसिडेंस भी नॉर्मल हो. तो R2 is 0. अब R2 0 आ गया. अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, what do you remember? R1 plus R2 equal to A. But wait a minute, what is A? 30. R1 plus R2 is 0 equal to A. So therefore R1 कितना आ गया? A. और A कितना है? 30. फाइन. अब फिर AB फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. तो फ्रॉम AB सरफेस, mu1 refractive index of outside medium, sine of angle which is 60 degree in this case, equal to mu2 which is refractive index of prism, sine of R1, right? But mu1 is 1 क्योंकि outside air था. Sine of 60 equal to mu2 sine of 30. Sine 60 is root 3 by 2. mu2 sine 30 is half. Cancel and cancel. तो आपको हो गया mu equal to under root of 3. Option number C. Next question. Angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to angle of prism. वापस से वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब डेल्टा एम इक्वल टू ए. राइट. तो अब एक काम करेंगे, अब एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे जो हमने ऑलरेडी किया है. कहाँ गया ये? लुक. तो दिस फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन से cos of a by 2 is mu by 2. इफ a इक्वल टू डेल्टा एम था क्या यहाँ पे? a इक्वल टू डेल्टा एम. तो उसके बाद हमने क्या किया? a और डेल्टा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. तो उसके बाद ये आया 2a by 2 मतलब a है ना, a plus a by 2. तो 2a by 2 मतलब sin of a. व्हाट इज sin of a? 2 sin a by 2 cos a by 2. तो यहां तक तो कॉमन रहेगा. तो up to this step you will have to do the derivation again. So what is better thing is, याद रख लो, if a equal to delta m, cos of a by 2 is mu by 2. खत्म. अगर इतना याद रह सकता है तो बेटर, नहीं तो पूरा सॉल्व करो. सो इस केस के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, you will have directly mu by 2 equal to cos of a by 2. राइट. हमको पूछा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म. दिया क्या है? म्यू की वैल्यू 1.5. 1.5 मतलब 3/2. 3/2 और by 2. 3/2 और by 2. ये 3/2 और by 2. 3/4 मतलब कितना? अरे रूट 3/2 कैसे? 0.75 होता है ये. हाँ, गुड. और ये 0.75 दिया है क्या? cos of 41. तो 0.75 मतलब cos of 41 मतलब cos of a by 2. तो cos गया, तो 41 is a by 2 and a is 2 into 41, that is 82. Option number C.
This is a joke. Respective angle of flint and crown prisms are A dash and A. They are to be used for dispersion without deviation. Then the ratio of angles A dash by A is, ये हमने तो क्लास में ही किया है. In theory we have done this, so we are not going to repeat this again. अगला क्वेश्चन again a joke. ठीक है, अब बता देता हूँ how to solve this. Refractive angle of prism is A and refractive index is cot A by 2. So mu is cot of A by 2. और आपको पूछा है what is the angle of minimum deviation. Refractive index किसका? प्रिज्म का. But what is prism formula? Prism formula क्या होता है? Sin of A plus delta m by 2 upon sin of A by 2. Very good. Sin of A by 2. What is cot? Cot is cos upon sin. तो ये आ जाएगा cos A by 2 upon sin A by 2. Cancel and cancel. तो ये आ गया आपके पास sin of A plus delta m by 2 equal to cos of A by 2. अब आपको ये पता होना चाहिए that आपको जब sin, या तो आप cos को sin के टर्म में लिखो या आप sin को cos के टर्म में लिखो, एक चीज करना पड़ेगा. One thing you have to do, either write down sin हटा दो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके. हाफ एंगल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटीज. cos of 90 minus theta is sin theta, या फिर यहाँ उल्टा करो. One thing you have to do, तो sin of A plus delta m by 2, cos of theta is sin of 90 minus theta. Cos of theta is sin of 90 minus theta. Cos of theta is sin of 90 minus theta. I know sin of 90 plus theta is also cos theta. So you have two things. आप sin of 90 minus theta को भी cos theta लिख सकते हो, आप sin of 90 plus theta को भी cos theta लिख सकते हो. तो प्रॉब्लम है कि कौन सा यूज करें, पहला कि दूसरा. पहला तो पहला क्यों, दूसरा तो दूसरा क्यों. प्रिज्म में 90 डिग्री के ऊपर एंगल होता ही नहीं है. हाँ, तो फिर यस, वेरी गुड. नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. ट्रिग्नोमेट्री बताता है यस यू कैन, बट दिस इज प्रिज्म, नो यू कैन नॉट. साइन गया. a प्लस डेल्टा m बाई 2 मतलब a बाई 2 प्लस डेल्टा m बाई 2 सेपरेट कर लिया. 90 माइनस a बाई 2, राइट. तो अब what will you do here is to solve this. इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे ना. हाँ, तो 2a by 2 plus a by 2, एक बार a प्लस डेल्टा m by 2 इक्वल टू 90. हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा m. तो ओके, तो डेल्टा m by 2 इक्वल टू 90 माइनस a, मतलब डेल्टा m is 2 into 90, 180 minus 2a. So delta m is 180 minus 2a. D. Next question. A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it from the pole, produces an image at. तो आपको focal length f बता दिया, आपको object distance भी f बता दिया, और आपको पूछा है what is the image distance. तो for a mirror, because it is a mirror, 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. So 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u. Using conventions, using sign conventions, आपको याद होना चाहिए what are sign conventions. ये convex mirror है, convex mirror में f पॉजिटिव होता है, f पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट तो वैसे भी लेफ्ट में ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा. तो 1 by v इक्वल टू 1 अपॉन प्लस f माइनस ऑफ माइनस, राइट. तो 1 by v इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u, बट u इक्वल टू f,
u इक्वल टू एफ बताया है ना आपको, तो 1/f प्लस 1/f इज 2/f, तो 2/f मतलब v इज इक्वल टू f/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at a distance 60 centimeter। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू thin lenses of focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, डिस्टेंट बोला है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है फोकस पे। वेरी गुड, मतलब v इक्वल टू f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है ना इमेज कहाँ बना 60 सेंटीमीटर, मतलब वो पॉइंट कौन सा रहा होगा, फोकल पॉइंट। क्यों फोकल पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तो इमेज इज फाउंड एट फोकस। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स। और ऊपर से ये था कि वेल ये कॉम्बिनेशन था, दो लेंस का कॉम्बिनेशन था, ओके। और आगे बोला है व्हेन द लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तो जब लेंस को कांटेक्ट में रखा था, ऑब्जेक्ट था डिस्टेंट मतलब u इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज बनेगा फोकल पॉइंट पे, और दोनों कांटेक्ट में थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, और f कितना है 60, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/60 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इक्वेशन नंबर 1। आगे बोला है द पोजिशन ऑफ दिस इमेज, ये जो इमेज 60 सेंटीमीटर पे बना था इसका पोजीशन, द पोजीशन of the image shifts by 30 centimeter towards the combination। मतलब ऐसा है, मतलब पहले डायग्रामेटिकली समझ लो, डायग्रामेटिकली समझ लो कि what is happening। तो you have two lenses when they were in contact, of course distant object है तो जहां भी होगा rays will be parallel, okay, and then these rays will converge at some point which is 60 centimeter from the system of lens। तो system of lens मतलब मैं यहां से मेजर करूंगा point of contact, just to show you, okay। अब आगे आपको बोला है कि image shifts by how much 30 centimeter, कहां towards the away, towards is important, मतलब in this case the rays are converging at 30 सेंटीमीटर। और आगे हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं तो बाकी है पढ़ना, वो भी देखते हैं, ओके। आगे आपको ये बोला है द पोजीशन ऑफ इमेज शिफ्ट्स बाय 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन व्हेन द टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले केस में लेंसेज वर टचिंग ईच अदर, नाउ दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो आपको याद होगा इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं d। अब अभी यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डायग्राम्स, तो आई जस्ट शो यू ओवर हियर। तो पहला जो केस था उसमें आपने लिखा 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 विच इज 1/60। दूसरे केस में यू मस्ट रिमेंबर इन सेकेंड केस व्हेन देयर इज डिस्टेंस d, तो यही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा व्हाट यू हैव इज, अगेन पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी था तो v इक्वल टू f था विच वाज 60 सेंटीमीटर। तो दूसरे केस में क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे केस में भी तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही है, सिर्फ न्यू इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू फोकल लेंथ, क्योंकि द मोमेंट यू शिफ्ट, द मोमेंट यू सेपरेट, फोकल लेंथ आल्सो चेंजेस, एंड दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये डेटा आपके पास है और आपको आगे पूछा होगा f1 और f2 फाइंड करो, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। नाउ यू सी 1/f डैश, f डैश कितना आया 30,
और ये जो आपके पास, यस, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1/f1 + 1/f2 इज 1/60 और d की वैल्यू है 10. गुड. तो इसको शिफ्ट कर दो. 10/f1 into f2 इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30. तो एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. तो 2/60, 1 माइनस 2/60 मतलब -1/60. फाइन. शिफ्ट इट हियर. तो आपको यहां से मिल जाएगा f1 into f2 इक्वल टू -600. करेक्ट. अब बहुत सारे बुक्स में ऐसा बता दिया, वो ये एक इक्वेशन है, वो दूसरा इक्वेशन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करो. राइट. बट डू यू सी product of f1 f2 is -600 minus. Do you see options? Yes. Can 30 and -60 multiply to give you how much? 600? नहीं. कितना होगा ये? कितना आएगा? 1800. ये आएगा. हाँ, तो हो गया क्वेश्चन खत्म. तो प्रोडक्ट ऑफ f1 and f2 should give you 600 -600. ऑप्शन नंबर बी. A thin double convex lens has radii of curvature each of magnitude 40. Thin double convex और radius of curvature भी same है, मतलब it is equiconvex. और दोनों का magnitude मतलब R1 equal to R2, magnitude is 40 centimeter. It is made up of glass of refractive index 1.65. The focal length is nearly. Again a simple question. Equiconvex के लिए focal length is 2 times of mu minus 1/r. पक्का? No. Then r ऊपर. Okay. r ऊपर. Then नहीं, बराबर है. Wait a minute. थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग में आपकी गड़बड़ है. The moment you write down फोकल लेंथ इज लेंथ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ, राइट हैंड साइड में 1/लेंथ. कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं. तो ऐसा नहीं, ऐसा था ये 1/. गुड. दिस इज व्हाट यू हैड. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. फाइन. गुड. देन अभी आपके पास सारे वैल्यूज हैं, तो इसका रेसिप्रोकल भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. r/2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1. r कितना? 40. म्यू कितना? 1.65. 1.65 minus 1 मतलब 0.65 into 2. 0.65 into 2 is 1.3. 40/1.3. 40/1.3. Wait a minute. Don't be in hurry always. 40 नीचे 1 होता तो 40 होता, तो नीचे 1.5 होता. Imagine 1.5 होता. 1.5 is 3/2. 40/3/2. by 2 मतलब 80. What is 80/3? 25 point something. Right? Correct. तो अगर नीचे 1 होता तो आपको आंसर मिलता 40. नीचे 1.5 होगा तो आपको मिलेगा 25. तो आपका आंसर 25 से 40 के बीच में आना चाहिए. अब 25 से 40 के बीच में दो आंसर है, 31 and 33. तो अब देयर इज नो वे आउट बट टू कैलकुलेट. तो नीचे 13 है, तो अब और सिंपल करते हैं. वेट अ मिनट. ये इसको ऊपर ले जाते हैं. हाँ, 13 3 जा 39. और आपको पता है 40/13 is how much? 3 point what? अरे तो क्या आएगा बताओ. ओके, टेल मी व्हाट इज दिस 31 और इज इट 35? 31. ओके, 31 centimeter. Option number A. Next question. The distance between an object and the screen is 100 centimeter. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेते हैं and the distance between the object and the screen is 100 centimeter. So let's take this as screen. You have a screen. You have an object.
and a lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 centimeter apart. Good question, थोड़ा अलग टाइप का है तो समझ लो अच्छे से. तो होता ऐसा है, you have, let's say ये लेंस है एक and this is lens L1, let us say. You have an object. So I am just drawing some line here. You can say this principal axis. एक ऑब्जेक्ट है which is kept here. So this is of some object AV. इसका इमेज पहले तो क्या बताया आपको? आपको बताया है the distance between object and the screen. मतलब you have been given screen to object distance. इसको मैं कैपिटल D से डिनोट करूंगा. कैपिटल D is 100 centimeter. Okay. Those who are from 11th must be knowing this. कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस, पॉइंट सोर्सेस और स्क्रीन का डिस्टेंस, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, लेंस एंड स्क्रीन का डिस्टेंस is normally denoted by capital D. So anyways, object and screen distance is capital D. A lens produces an image on the screen. तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा स्क्रीन पे. तो ऑब्जेक्ट एक साइड पे है, स्क्रीन दूसरे साइड पे है, तो the nature of the image will be real and inverted. Okay, so of course you will have image, inverted image, something like that. ये image है, मान लो this is some image. आगे क्या बोला है? आगे बोला है a lens produces an image on the screen when placed at either positions 40 centimeter apart. मतलब जरूरी नहीं है कि लेंस यहीं पे होगा. लेंस के दो पोजीशंस है, एक है L1 और दूसरा है L2, और दूसरे पोजीशन के लिए भी इमेज वही बनेगा. कहां पे? स्क्रीन पे, राइट. सिर्फ इतना हो सकता है कि मे बी दिस टाइम इट इज नॉट मैग्निफाइड, इट इज डिमिनिश्ड. ओके, पॉइंट डिमिनिश या डिमिनिश, वी डोंट केयर एट दिस पॉइंट. तो ये जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? लेंस टू लेंस का पोजीशन. और याद रखना यहाँ पे कोई दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस है. पहले L1 पे रखा, इमेज बना स्क्रीन पे, आपने फिर L2 पे रखा, फिर से इमेज बना स्क्रीन पे, राइट. तो इन दैट केस द पावर ऑफ द लेंसेज, इसका एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आपको याद रखना है. यू डोंट हैव टू गो एंड डिराइव दैट फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. आपको पता होना चाहिए D is distance between object and screen, X is distance between two positions of the lens. तो focal length of the lens, ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ, इट इज D square minus X square upon 4D. ऐसा फॉर्मूला बनता है, D square minus X square upon 4D, where capital D is object to screen distance measured in centimeter. मीटर में होगा तो भी चलेगा, अगर D मीटर में है तो X को भी मीटर में लेना पड़ेगा. तो 100 मतलब 10 पावर 2, 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4, 40 मतलब 4 into 10, 4 into 10 उसका स्क्वायर है 16 into 10 पावर 2 अपॉन 4 into D, D is 100. मैं इंटेंशनली फिलहाल इसको मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ क्योंकि फोकल लेंथ है. यू सी what is happening here? ये 10 पावर 4 और 10 पावर 2, 10 पावर 2 कॉमन, 10 पावर 2 बचेगा. 10 पावर 2 मतलब कितना? 100 में से 16 गया तो कितना? 84 अपॉन 4 into 10 पावर 2, कैंसल एंड 1 जा एंड 21 जा. हो गया आंसर 5 डायोप्टर, क्योंकि फोकल लेंथ कितना आया? 21 सेंटीमीटर. अगर फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है तो पावर ऑफ द लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ. बट वेट अ मिनट, 1 अपॉन फोकल लेंथ if the focal length is in meter and if it is in centimeter then 100 by f. याद रखना, power of the lens is 1 upon focal length if focal length is in meter, but if focal length is in centimeter तो 100 by f होता है पावर. 100 by f, what is f? 21, roughly 1 and 5 जा. तो 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. shown in figure here is a convergent lens. shown in figure here is a convergent lens, मतलब biconvex lens.
Okay, placed inside a cell. तो there is a cell filled with a liquid. तो ये जो सेल है उसमें लिक्विड फिल करके रखा है. The lens has a focal length 20 centimeter when in air. तो जब इस लेंस को एयर में रखोगे तो focal length is 20 centimeter and its material has a refractive index of 1.5. If the liquid has refractive index of 1.6, the focal length of the system is. तो सबसे पहले you need to understand exactly what they are asking you. Well, सबसे पहले आपको ये बोला है कि आपके पास एक कॉन्वर्जेंट लेंस है, मतलब ये जो बीच में लेंस दिख रहा है दैट इज कॉन्वर्जेंट लेंस, और इसका फोकल लेंथ कितना 20 व्हेन इन एयर. तो एक काम करो, पहले इस सिस्टम को ऐसा ट्रीट करो, ट्रीट दिस सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ 3 लेंस. तो आपके पास 2 लेंस तो यहां से आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा पहला लेंस. तो एक काम करता हूं मैं, व्हाट आई विल डू इज मैं यहीं पे दिखा देता हूं इसको, more or less like this. Okay, fine. So you have more or less. Ab imagination you have to do. So you need to imagine. Good. Then you have the situation. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा. फाइन. तो अच्छे से समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, देन ये जो लेंस है ये लेंस नंबर 1 है. एक्चुअली ये लेंस बाद में बना, सबसे पहले जो था वो मिडल लेंस था, सिर्फ मिडल लेंस था. और ये जो मिडल लेंस है इसको अगर आप एयर में रखते, तो इफ यू कीप दिस लेंस इन एयर समथिंग लाइक दैट, तो यू हैव फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस सेकेंड लेंस, focal length of second lens is 20 centimeter or refractive index is 1.5. Good. Then you have a cell जिसमें आपने लिक्विड भर दिया है. तो क्या होगा कि ये लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 3, मतलब I will say chamber number 1 and chamber number 3 will become lens and they will become lens of refractive index 1.6. तो ऐसे सिस्टम को हम ट्रीट कैसा करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम मान लेते हैं दैट इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस. तो वी ट्रीट दिस सिस्टम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस. मतलब हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे ये एक लेंस होगा. तो दिस इज 1 लेंस. लेट्स से यू हैव अ लेंस ओवर हियर. ओके, ऐसा एक लेंस आएगा आपके पास. सिमिलरली देन यू विल आल्सो हैव दिस इज लेंस नंबर 1, और एक लेंस बनेगा और एक लेंस बनेगा. गुड. तो यू विल हैव 3 लेंस नाउ, 1 2 एंड 3. जो 1 और 3 लेंस है इसका वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है जितना 2 का है, राइट? तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? Obviously you will write 1 upon focal length of the combination is 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3. f2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 सेंटीमीटर दिया है. f1 एंड f3 क्वेश्चन, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ये नीट और जेई दोनों के लिए ही होता है. इट इज लाइक एक लेंस था जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, व्हेन इन एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5. देन यू हैव अ सेल, और हमने सेल के 2 चेंबर्स में लिक्विड भर दिया. तो इट इज नाउ बिहेविंग एज लेंस नंबर 1. और लेंस नंबर 1 कौन से मटेरियल का है? लिक्विड का है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू एल, और इसका भी म्यू एल, और ये है म्यू जी ग्लास. अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया 1 2 एंड 3 लेंस का, these 3 lenses are supposed to be kept in surrounding air. तो जो लेंस नंबर 1 है लिक्विड का वो एयर में है, जो लेंस नंबर 2 है ग्लास का वो भी एयर में है, जो लेंस नंबर 3 है लिक्विड का वो भी एयर में है. नहीं तो आप बोलोगे नहीं, लेंस नंबर 2 का सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है. इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. आपको ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि तीनों की तीनों का सराउंडिंग क्या है? एयर. अब वेल, दिस इज प्लानो कॉनकेव, दिस इज प्लानो कॉनकेव. गुड. तो अब आप क्या करोगे, आप तीनों का
you will have to find out what is focal length of 1 and 3. 2 का तो पता है, तो how do you find out focal length of 1 and 3? कैसे फाइंड करोगे 1 and 3 का फोकल लेंथ? माइनस, okay, so you are telling me that 1 upon focal length will be mu minus 1 and 1 by r. Good. मतलब basically ये प्लानो कॉन्वेक्स के लिए होता है, I know. So basically you are telling me कि f equal to r upon mu minus 1 with a negative sign. Very good. तो f1 और f3 will be the same, क्योंकि दोनों में एक एक प्लेन सरफेस है, एक एक कॉन्केव है, और ऑल्सो बिकॉज ओवरऑल द लेंस इज कॉन्केव, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यू गेट नेगेटिव. बट बाय द वे, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज आर? नो, डू यू नो दिस इज इक्विकॉन्वेक्स? हाँ, तो इक्विकॉन्वेक्स में f इक्वल टू आर, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसका कर्वेचर और सेकेंड लेंस का कर्वेचर सेम होगा. हाँ, तो कर्वेचर सेम होगा, तो कर्वेचर सेम होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू माइनस आर, बट r इज f अपॉन म्यू माइनस 1. बट व्हाट इज f? 20 माइनस 20 अपॉन म्यू कितना? 1.6 माइनस 1. तो यह आ जाएगा f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 0.6, मतलब 6 into 10 पावर माइनस 1. ऊपर गया, कितना आ गया? 200 बाय 6, मतलब कितना? माइनस 100 बाय 3. गुड, दिस इज व्हाट यू नीड. और अब ये सारे वैल्यूज जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे? इन द इक्वेशन फॉर कॉम्बिनेशन. तो व्हाट यू विल गेट हियर इज दिस 1 upon f is 1 upon f1, but 1 upon f1 ये f1 है, हमको 1 upon f1 चाहिए. माइनस 3 by 100, माइनस 3 by 100 प्लस 1 by 20 और वापस से ये आ गया माइनस 3 by 100. तो ठीक है, अब एक काम करते हैं. वैसे तो मैंने यहीं पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए था. I should not be writing this, क्योंकि in that case what will happen, इससे क्या होगा? इससे ये माइनस और 2, फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दिस इज 2 बार 2 टाइम्स अपॉन 200. दिस इज एक बार, लेकिन 10 by 200. गुड, राइट, वेरी गुड. तो 1 अपॉन f इज माइनस 12 प्लस 10, माइनस 12 प्लस 10 अपॉन 200. तो f इक्वल टू 200 बाय माइनस 2, मतलब माइनस 100 सेंटीमीटर. अब एक चीज समझ लो, ये पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आया 100 विद अ नेगेटिव साइन, मतलब द कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव लेंस, मतलब डाइवर्जिंग लेंस. है क्या? माइनस 100. ऑप्शन नंबर डी. So this is how you are supposed to solve this question, and that's it for today.